Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. In this video, I wanted to tell you how do you manage it all. So basically, recently I went back to my school, Air Force Golden Jubilee Institute, met a lot of students in 12th standard, gave them motivation, tips and tricks and stuff like that. Basically, giving back to my alma mater and like that. And I wanted to tell you that I cracked NEET UG, basically AIPMT होता था उस point of time पे, with an all India rank 6, AIMS with an all India rank 10. At the same point of time, मैंने कोई dummy school join नहीं किया था. I was regular in my school. I secured 95% in boards as well. Got the Inspire scholarship. And this was only possible because I managed my time very effectively. And मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, time management is all about hard work and dedication. कोई extraordinary कुछ अलग से skill नहीं होता time management का. But time management is also about being smart. So this video is for all the 12th standard or 11th standard students who are struggling with managing coaching, an offline coaching or an online coaching, and at the same point of time the school studies and their boards, and उसको कैसे manage करना है. So let's say कि तुम्हारी coaching जो weekday coaching होती है, मैंने weekend join की थी, but let's say weekday तुम्हारी coaching होती है because weekday is tougher than weekend में time निकल आता है थोड़ा बहुत. Monday Tuesday तुम्हारा school होगा from 8 to 2, 4 से 8 तुम्हारी कोचिंग होने वाली है. सो यू विल बी लाइक 4 से 4 to 7:30 विल बी योर कोचिंग. सो लाइक टाइम कहाँ मिला, रात के 8-9 बजे हम लोग घर पहुंचे हैं, 8:30 बजे हम लोग फाइनली फ्री हुए हैं, 12 बजे हमें सोना है. सो यू रियली डोंट हैव एनी टाइम टू स्टडी. 1 या 2 घंटे ही मिलेंगे ऑन द हायर साइड. तो ऐसे तो 4 दिन हमारे चले गए. बाकी 3 दिन में हम लोग सारा का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? So the answer is you can, you shall, you will, need to have faith and you need to put in the efforts. So कैसे करना है यार? देखो, the thing is Monday, Tuesday and Thursday, Friday. On Monday, Tuesday and Thursday, Friday, you have to realize since that those days are coaching days and you will be going to school as well, your mind will be in a state कि physics, chemistry तो भूल जाओ. You need time, you need efforts and you need a headspace to do physics and chemistry. तो Monday, Tuesday, Thursday, Friday तुम्हें physics और chemistry नहीं करनी. बिकॉज अगर तुम लग रहा है कि तुम कुछ कर रहे हो, देट इट रियली वोंट गो इनटू योर माइंड. बेमतलब में बीटी कराएगा तुम्हें एंड इट रियली वोंट स्टिक विद यू. रादर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे आर द डेज टू डू बायोलॉजी. अभी बायोलॉजी करें तो करें कैसे? तो 2 से 4 जो है ना, व्हेन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल फ्रॉम 2 to 4 यू प्रैक्टिस 1 hour MCQs. इवन व्हेन वी आर वेरी टायर्ड ना, हम लोग MCQ सॉल्व कर सकते हैं और बायो के MCQs तो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स अज्यूम राइट नाउ दैट यू डिड XYZ चैप्टर वाज डन इन योर स्कूल, या कोचिंग में जो भी चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का, लेट्स से इवोल्यूशन चल रहा है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो घर आओ 1 घंटा इवोल्यूशन के उस सब टॉपिक के जो भी MCQs हैं उनको सॉल्व कर लो. ठीक है, 8 बजे तुम्हारी कोचिंग खत्म हुई, 8 से 12 1 घंटा बैठ के जो भी कोचिंग में पढ़ाया उसकी NCERT पढ़ो. 1 घंटा फिर से MCQ सॉल्व करो क्योंकि थके हुए होगे तो NCERT भी बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे. MCQ फिर भी सॉल्व हो जाएंगे बट थ्योरी रीडिंग नहीं हो पाएगी. एंड 1 घंटा MCQ प्रैक्टिस करो एंड देन जो MCQs में मिस्टेक्स हुई हैं उनकी हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स MCQ NCERT रीड करो. You have to figure out a way from 2 to 4. Don't slack, don't waste time. उस 1 घंटे में I know थ्योरी पढ़ना मुश्किल है, I know फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं हो सकती, बट 1 घंटा MCQ सॉल्व हो सकता है. To try to solve that 1 hour of MCQs on that point of time. After coming back, 1 घंटा NCERT पढ़नी है, अगेन MCQ प्रैक्टिस में लग जाना है. एंड कोचिंग में तुम्हें 6 घंटे बायोलॉजी पढ़ाई होगी, 6 घंटे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाई होगी, बाकी सारा टाइम हुआ होगा. सेम हियर 6 hours ऑफ बायोलॉजी तुम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ MCQs प्लस थ्योरी कवर कर लिया होगा. जो वेडनेसडे, सैटरडे, संडे है, दैट टाइम इज मेंट फॉर सेल्फ स्टडी. उस दिन बैठ के फिजिक्स और केमिस्ट्री आराम से अच्छे से सॉल्व कर लो. एंड आई नो कि डिस्पाइट बीइंग इन कोचिंग इट्स फुली पॉसिबल दैट ऑन द डेज ऑफ वेडनेसडे, सैटरडे, संडे ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी देर आर पॉसिबिलिटी कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में, उस पर्टिकुलर चैप्टर में देर आर सम कंसेप्ट्स जो तुम्हें समझ ना आए, जो कंसेप्ट्स में तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लैक करे. इस सिनारियो में आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू एन ऐप कॉल्ड फिलो. फिलो इज एन अमेजिंग ऐप जिसमें जो भी तुम्हें कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा, यू जस्ट नीड टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट, put it up online. Within 60 seconds you will have a tutor who will explain that concept to you. तो self study के लिए this is an amazing app. Not just during this point of time. मान लो कि जिस दिन बायो भी पढ़ रहे हो उस दिन भी अगर तुम्हें लग रहा है obviously रात के 11 बजे you cannot connect to your coaching center, but this helps app will be a good partner in your self study, especially on Wednesday, Saturday and Sunday जब तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री को सॉल्व करने में लगोगे, जब तुम्हें conceptual clarity चाहिए होगी. So this is the Philo app. Whichever question that you are having a difficulty with or conceptual clarity you want, take a picture of that question. Within 60 seconds, you will be connected to a tutor, a teacher who will help you with that question, and you can bookmark your favorite teachers and later use them as well. So 14 घंटे तुम्हें बायोलॉजी करनी है,
सो 14 घंटे तुम्हें बायोलॉजी करनी है। कैसे करोगे? 3.5 घंटे ऑन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ये 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में 14 घंटे बायोलॉजी करनी है। कैसे? 2 से 4 के बीच में 1 घंटा तुमने एमसीक्यू सॉल्व किया, वापस आने के बाद 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ी, 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व किया, फिर 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ी। 4 into 4 16 आवर्स, आई एम टेकिंग इट एज 14 आवर्स, दैट्स अबाउट इट। वेडनेसडे, सैटरडे, संडे यू हैव टू गिव 12 आवर्स ऑफ योर लाइफ। ये तो मान लो तुम लोग कि ना इतनी मेहनत तो तुम्हें करनी है। 24 घंटे हैं, यू हैव टू गिव 12 आवर्स। वेडनेसडे को स्कूल मत जाओ, 80% अटेंडेंस इज मोर देन इनफ। गिव 12 आवर्स, finish your physics and chemistry in that point of time. 50 hours in a week, 7 hours per day, you will crack the exam. Now another question that people keep on asking me, सब बोर्ड एंड प्री बोर्ड्स के टाइम पे टाइम वेस्ट होगा, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे। तो यार थ्योरी एंड एमसीक्यू गो हैंड इन हैंड, दे आर नॉट टू डिफरेंट सेपरेट थिंग्स। तो लेट्स से कि तुम्हारा मंडे को प्री बोर्ड्स में, मंडे को तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, वेडनेसडे को तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर है, फ्राइडे को तुम्हारा बायोलॉजी का पेपर है। दिस इज एवरीथिंग व्हाट आई एम सेइंग इज मैंने खुद की है एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेल यू। तो यार लेट्स से तुम्हारे को जब ट्यूसडे मिला टू डू केमिस्ट्री, तो उस दिन तुमने जब एनसीईआरटी पढ़ी या तुमने जो थ्योरी भी बुक पढ़ी, तुमने पूरी की पूरी केमिस्ट्री रिवाइज की इन दैट वन डे ड्यूरिंग बोर्ड्स, राइट? तो गिव 3 घंटे निकाल के, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग थ्योरी को एक और बार रिवाइज करने से, इंस्टेड ऑफ दैट इन 3 आवर्स प्रैक्टिस अ मॉक टेस्ट ऑफ द एंटायर 12th की केमिस्ट्री, राइट? सेम फॉर बायोलॉजी, प्रैक्टिस एन एंटायर मॉक टेस्ट ऑफ एंटायर बायोलॉजी। 12th तुमने अभी भी पढ़ी है बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए। 11th तुम्हें आई अग्री नहीं आती होगी, 50% आ जाएंगे, 60% आ जाएंगे। वट एवर यू डोंट नो, वट एवर 50-30% यू डोंट नो, यू गो बैक, कोई प्रीवियस क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व कर लो बायोलॉजी का, यू गो बैक, रीड 11th की एनसीईआरटी थोड़ी बहुत फॉर हाफ एन आवर एंड 1 आवर, तुम्हें पता चल जाएगा वेर लैकिंग आता, जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं है। और 12th तुमने अभी अभी रिवाइज की पूरी थ्योरी, उसको तुम एमसीक्यू का फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि टाइम ना निकालना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट जो होती है, मैं इतना सब कुछ अगर कर पाया था, इफ आई वाज, आई एम नॉट ब्रैगिंग और एनीथिंग, बट आई डू बिलीव दैट इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज आई वाज डेडिकेटेड एंड आई फिगर्ड आउट अ वे टू गेट माई टाइम बैक। मैं बस में पढ़ने लग गया था, ठीक है, आई अंडरस्टैंड बस में पढ़ना इम्पॉसिबल है, बस में पढ़ना कई लोगों से नहीं हो पाएगा पॉसिबल, बट कहीं से तो टाइम निकालोगे। सो जब 2 बजे स्कूल से घर पहुंचे हो और 4 बजे कोचिंग है, उन 2 घंटों को वेस्ट मत करो। 1 घंटा एमसीक्यू सॉल्व करना वहाँ पे सीखो। 8 बजे जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करके वापस आ रहे हो कोचिंग, तो उस समय थके हुए मत रहो। आई नो उस समय एनसीईआरटी, उस समय फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो सकती, स्मार्ट वर्क होगा दैट डे यू हैव टू डू बायोलॉजी। Read 1 hour of NCERT, solve 1 hour MCQs. You won't get tired doing MCQs. So whenever I used to feel tired, I used to be like, यार 5 मिनट और पढ़ लेता हूँ। 5 मिनट के लिए 5 मिनट में मैं 10 MCQ और निकाल लूँगा। 5 मिनट के लिए एक पन्ना NCERT का मैं एक और बार पढ़ लेता हूँ, या 2 डायग्राम NCERT के और देख लेता हूँ। तुम्हें लगेगा कि यार ये 5 मिनट करने से एक्स्ट्रा क्या होने वाला है ऑन अ डेली बेसिस, बट आज से इवन इफ यू कंसिडर देयर आर 180 days, 200 days left for your NEET UG exam, over a period of time, these 10 MCQs will accumulate and they will be more than 2000 MCQs, yaar. And this 2000 MCQs practice might determine you getting a seat and not someone else not getting a seat. So get into the habit of figure out कि टाइम निकालना कैसे है। टाइम तो किसी के पास नहीं होता, टाइम तुम्हें मेहनत करके निकालना पड़ेगा, और निकालना जिस दिन शुरू कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारा नीट यूजी क्रैक हो जाएगा। So this is my way of how to do effective time management, managing it all. Thank you and have a nice day.